The meeting of the 212th Managing Committee of the All India Motor Transport Congress was held on the 10th of October at Sahara Star, Mumbai, where the lamp was lit in the presence of the dignitaries of the central government and state government and those associated with the world of transport. This program was organized under the guidance of Malkeet Singh Bal, Organizing Committee President and former President of All India Motor Transport Congress. Many other matters like road safety, challan, arbitrariness of traffic police, road problems, training of drivers, road safety were discussed by the AIMTC organization in the West Zone Convention, where Union Transport Minister Nitin Gadkari apologized to everyone for not attending this meeting. He conveyed his words to the people through a video. That in your convention, you are giving special priority for road safety. Road safety is the big concern for all of us. In the world presently, we are number one. Every year we have 5 lakh accidents and 1,50,000 deaths, out of which the 60% death belongs to 18 to 34 years. Unfortunately, this is a tragedy for the country. And this is the time that, with the all cooperation of all stakeholders, we need to save the life of the people. On this occasion, as the guest of honor, Ashish Kumar Singh, Transport Additional Principal Secretary, Government of Maharashtra, Vivek Bhim Anwar, Transport Commissioner, Government of Maharashtra, Avinash Dakane, former Transport Commissioner, President Akhil Gujarat Truck Transport Associations Vasan Bhai Ahir, President BGTAs Anil Vijan, Principal Sponsor Ashok Leland, Co-Convener Organizing Committees Suresh Khosla and Guru Pratap Singh Gandhi, former President of AIMTC Bhim Wadhwa, Kultaran Singh Atwal, Charan Singh Lohara, GR Shanmugappa, Vice President North Jaspal Singh, Vice President East Prabhat Mittal, many dignitaries including Vice President South Arvind Appaji were present on the occasion, where everyone in turn gave their suggestions and demands through this forum. सर, रोड सेफ्टी के बारे में सरकारें नीतियां बनाती है, बट वेयर इज द स्टेक होल्डर्स? अगर स्टेक होल्डर्स की बात सुनते तो आज साइरस मिस्त्री हमारे बीच में होते। हमने कई बार उसका उल्लेख किया है कि दैट इज द ब्लैक स्पॉट, इसके बारे में दुरुस्त करिए, लेकिन हमारी उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटर डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, हमारी समस्याएं जहां पर आप हमारे नोडल मिनिस्ट्री हैं या नोडल अधिकारी हैं, आपके माध्यम से हम सरकार के पास पहुंच सकते हैं। कई समस्या हमारे गृह विभाग की हैं, कई अर्बन डेवलपमेंट की हैं, कई हाईवेज की हैं, कई MRCTC की हैं। एक कमेटी गठित हुई है। आपने ई चालान की बात की, बहुत खुशी की बात है। डिजिटल जमाना है, ई चालान होने चाहिए, हम उसको प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि बाल मलकीत सिंह जी ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना आदर दिया। मैं सरकार की तरफ से सिर्फ ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जो भी मुद्दे उन्होंने मुझसे पहले यहाँ पर रखे हैं, उन पर सरकार विचार कर रही है और विचार करेगी और सकारात्मक उसका कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जो अपने थीम रखा है इस प्रोग्राम का, रोड सेफ्टी के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस तो सब लोग करते हैं। बिजनेस करते समय जिनकी वजह से ये बिजनेस हम करते हैं, उन लोगों का भी ख्याल करना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसपोर्टर का मतलब सिर्फ ट्रक टैंकर नहीं है, मगर वो चलाने वाला आदमी जो है वो भी उतना ही महत्व रखता है। रोड सेफ्टी का विषय ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें 4-5 तरह से हम इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों की जो फिटनेस है वो अच्छी से अच्छी रहने के लिए हमने नए INC सेंटर्स का ये किया है और वो 23 नए INC सेंटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले ही मान्यता दी है उसको। उसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं उनको अच्छे ड्राइवर बने, इसके लिए टेस्टिंग ट्रैक्स बना रहे हैं, उसकी भी मान्यता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली दी है। और जो रोड्स पे ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हम रेगुलरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन ब्लैक स्पॉट्स को हम दूर करने के लिए जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स में जो चेंजेस लाने हैं वो कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि हमने सिम्युलेटर भी खरीदे हैं ताकि लोगों की एक्सीडेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। एक्सीडेंट की ट्रेनिंग रियल लाइफ में दी नहीं जा सकती, इसलिए सिम्युलेटर पर देने का हमारा प्रयास है। हमने गुड समैरिटन्स की एक गाइडलाइन भी निकाली है कि अगर कोई भी व्यक्ति
एक्सीडेंट में किसी की मदद करता है तो उसको किसी प्रकार का हैरेसमेंट ना हो। और ट्रॉमा केयर सेंटर्स भी हमने अपने सभी हाईवेज पर सैंक्शन किए हैं। सर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपनी कई सारी बातें रखी है, तो उस पर किस तरीके से विचार किया जाएगा? इन सभी मुद्दों पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रेजेंटेशन किया गया था 2-4 दिन पहले, और इस पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। जो भी उचित होगा वो उचित समय पर निर्णय लेने के बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन क्यों है? जैसे कि आपने रोड सेफ्टी की बात की है, रोड सेफ्टी में जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं और उसकी जो डेथ है वो भी बढ़ रही है, बट जब हम उसका एनालिसिस करते तो एक बात ध्यान में आती है कि हर कोई एक्सीडेंट जो है अवॉइडेबल होता है, हर कोई एक्सीडेंट हम रोक सकते हैं। और इसलिए अगर ये रोड सेफ्टी, अगर हमको इसमें जो ह्यूमन एरर है, अगर ये ह्यूमन एरर को कम करना है तो हमें उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो सबसे पहले तो ये है कि हमारे ड्राइवर स्किलफुल होने चाहिए, तो ड्राइवर को हम ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बना रहे हैं यहाँ, ताकि जो भी ड्राइवर यहाँ से जिनको सब लाइसेंस मिलेगा वो सब ड्राइवर स्किलफुल रहेंगे। बाद में हम जो व्हीकल का फिटमेंट है, वो व्हीकल का फिटमेंट जो है वो भी हम ऑटोमेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर जो व्हीकल है रास्ते पे दौड़ रहा है वो व्हीकल फिट रहे। और जैसे कि हमने सुना अभी माननीय हमारे नितिन गडकरी साहब ने उनके संदेश में कहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, लेन ड्राइविंग के लिए है, लेन डिसिप्लिन के लिए है, ओवर स्पीडिंग के लिए है, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक स्पीड गन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब जो इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं, निश्चित ही आने वाले कुछ समय में रोड एक्सीडेंट में कमी हो जाएगी। जिस तरह से मुंबई की खासतौर बात करें कि मुंबई की सड़कों के लिए हर साल जो है पैसे आवंटित होते हैं, लेकिन हर साल गड्ढे उससे ज़्यादा ही उभर के आते हैं। क्या ऐसे में सरकार कुछ नया प्लान लाने वाली है? देखिए, गड्ढों के बारे में मैं बोलूँगा, जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो उस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी अपने प्रेजेंटेशन में भी देखा रहेगा कि गड्ढे यहाँ एकमात्र वजह नहीं है। काफ़ी जो एक्सीडेंट है वो प्लेन रोड पे हो रहे हैं, हाईवेज पे हो रहे हैं, ड्राइवर के फटीग की वजह से हो रहे हैं, ओवर स्पीडिंग से हो रहे हैं, ओवरलोडिंग से हो रहे हैं, ड्रंक ड्राइविंग से हो रहे हैं। और यहाँ सब चीज़ों में हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि कोई ओवर स्पीड गाड़ी रास्ते पे नहीं चले, ओवरलोड गाड़ी रास्ते पे नहीं चले। तो इस प्रकार से हम हमारी उपाय योजना कर रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वेस्ट जोन की कन्वेंशन इनिशिएटिव रोड सेफ्टी मंथन, हमारे मुद्दों के बारे में विस्तार पर चर्चा हुई। यहाँ पर हमारे आशीष कुमार सिंह जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भुवनेवर जी, हमारे एक्स ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश डाकने जी और अवैध आमले प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स और जॉइंट सेक्रेटरी मॉर्थ यहाँ पर थे। हमने अपनी जो ऐसे स्टेक होल्डर जो जिम्मेदारी हम समझते हैं उसके बारे में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, उनकी उन्होंने सराहना की। और हमारे जो मुद्दे हैं हमने विस्तार पर उन पर रखे कि किस तरह की हमारी दिक्कतें आ रही हैं, बेसिक कम्युनिटीज़, ट्रक टर्मिनल, पार्किंग फैसिलिटीज़, ई चालान का दुरुपयोग, एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट और स्टैंडिंग कमेटी हमने बोली है कि गठित करें जो हमारी समस्याएं की लगातार सुनवाई करे, रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन करें। ये सारी जो इश्यूज़ हैं हमारे, इनके पक्ष पास रखे हैं। और आशीष कुमार सिंह जी ने सरकार के माध्यम से आश्वासन दिया है कि इसको सकारात्मक रूप से देखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम होंगे और उचित समय पर उचित परिणाम की घोषणा भी होगी। But the states are not going to remove that. There is more corruption. Start from the total check posts. We will also fight from that. Our trucks are waiting, and our GDP growth is going down. So please, we are going to remove the total check posts in Madhya Pradesh, Maharashtra, everywhere. 23 years हो गया रोड बना के पुणे टू बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, crores of rupees कलेक्शन हो गया। वो टोल आज तक निकाला नहीं, क्यों करके हमको समझ में नहीं आया। crores of rupees रेवेन्यू आने के बाद भी मेंटेनेंस फीस कलेक्ट करना था, मेंटेनेंस फीस आज तक कलेक्ट नहीं करता है, टोटल टोल कलेक्ट करता है। इसमें बहुत बड़ा crores of rupees ट्रकर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बात ही बात,
हमको बहुत बड़ा दुखी बात है। केंद्र सरकार ऑलरेडी बोल दिया बॉर्डर चेक पोस्ट हटाओ करके, इसमें आरटीओ इतना तकलीफ देता है हमारा को, ये महाराष्ट्र आरटीओ बोल नहीं सकता है। इसके लिए तुरंत नितिन गडकरी जी हिंदुओं के इसमें बॉर्डर चेक पोस्ट को तुरंत महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट हटाना पड़ेगा। बाद में रोड में एनी प्लेस महाराष्ट्र में हाईवे में बहुत पुलिस एंड आरटीओ हरासमेंट है, उसको मुख्यमंत्री जी तुरंत दे के इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ट्रकर बहुत बड़ा परेशान में लग गया।